Hello, mic testing. This is Dr. P.K. Srivastava presenting a video on lot of questions what we receive from our clients about the breed multiplication scheme. Already the BMF scheme has given on its site eoi.ndtv.coop a frequently asked questions list. However, there are many points which are not understood properly by the clients, by the aspirant, those who are applying for this scheme. Now let us go one by one to this, and this video will be bilingual. It will be English as well as in Hindi. In between we will speak in Hindi also for those farmers, those who are more comfortable in Hindi. So ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि जो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है ब्रीड मल्टीप्लिकेशन की इसकी प्रोजेक्ट के साइट के ऊपर, उसमें से बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती हैं और हम लोगों को इसीलिए ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस के जवाब को हम लोग चाहते हैं कि वीडियो में दे दें ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए समझने में। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या इसमें करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि व्हाट द एप्लीकेंट मस्ट नो अबाउट बीएमएफ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको पहले से जानें। बिफोर यू आर अप्लाइंग यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। ओके, so then this is Dr. P.K. Srivastava. This is our credential, and finally we always request our viewer to go to our YouTube handle and watch our video, because most of the videos what we are putting are time active, and at this time they are most relevant. So the old videos may not be so relevant because the many thing has been changed into the project. Let's go to the second slide, please. The second slide says that we want to acknowledge to the NDTV, Government of India. On the site they have provided all the data, pictures, information. The eoi.ndtv.coop site, they have provided all these informations. The same informations we are trying to project on this video without any alteration or any addition, and to pass on the information in simple word. हम ये चाहते हैं कि ये eoi.ndtv.coop पर दिया हुआ जो भी इंफॉर्मेशन है वो फार्मर्स के हेल्प के लिए है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एनडीटीवी ने इसको प्रोवाइड किया हुआ है इस साइट पर, और हम उन्हीं इंफॉर्मेशंस को एक ऐसे फॉर्म में, ऐसे लैंग्वेज में, ऐसे भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं ताकि भारत के डेयरी फार्मर्स को इसका लाभ मिले। यही पर्पस है इस वीडियो को बनाने का। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप हमारा वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब हैंडल @प्रेम कुमार श्रीवास्तव 8002 कृपया देखें। अगर लाइक करते हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करें। हमारा अगला स्लाइड क्या बताता है? We are going to see this slide. This slide says breedability after 75 years. This is the reality. Government of India, the India is top milk producer from 1997 onward, and there is no one looking which is running close to India, and this level cannot be crossed by any of the country in the world in near future. But at the same time, India stands 15th at the per animal production in the world. So that is to address that, this scheme has been propagated on the PP model. It's a partnership model where the partner, the applicant is also a partner, Government of India is also partner, and implementing agency is NDDB, National Dairy Development Board. So now see what this slide says. This slide says the breedability after 75 year in female buffaloes, it is 51%. Means in the country, whatever the female buffaloes are there,
only 51% are breedable or are being bred. So the point is, why it is happening after so many years we could not go up to 80%, 90% breedability in the animals. The reasons are either these animals are nondescript, they are local animals, they do not have that potential to breed every year, or maybe having the genetic vigor, और the main reason is कि इनकी जो फीडिंग होती है, they are fed on the negative energy feeding, adult or the heifers. And once there is a feeding, negative energy feeding, animal cannot devote the energy towards the breeding. So that is the reason many of the animal will not come into puberty in time. They will come into late puberty. Many of the animal will not come into heat because they are fed in a negative energy way. मतलब उनकी खुराक पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो या तो जल्दी गाभिन होने के लायक नहीं बनते हैं, और या वो जल्दी हीट में नहीं आते हैं, या हीट में आते हैं तो कंसीव नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से ब्रीडेबिलिटी घट जाती है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है स्ट्रेस फैक्टर। हम सभी जानते हैं कि द टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वाटर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और लैंड जिसमें कि हरा चारा उगाया जाता है वो डे बाय डे रिड्यूस होता जा रहा है। और कॉमन प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी, रिसोर्सेस घटता जा रहा है डे बाय डे, और जमीन की उर्वरकता भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, और उसके बहुत सारे और भी कारण हैं। तो जिसकी वजह से एनिमल के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। एनिमल के ऊपर स्ट्रेस क्यों आ रहा है? क्योंकि हम तो कमरों में छुप जाते हैं, हम तो अपने लिए कंफर्ट डिजाइन कर लेते हैं, लेकिन एनिमल के लिए तो वही हाउसिंग है। विलेज में किस तरह एनिमल रखा जाता है, सिटीज में किस तरह एनिमल रखा जाता है, ये सारी चीजें हम लोगों से छुपी नहीं है। We have seen how animals are kept in the cities, in the villages, how comfortable is their housing, how much their availability of the water 24/7, and how their heat stress is being controlled, how their other stress is the feeding. Feeding is negative. The water availability is not a clean water for the animal to drink. If it is there, it's always a good thing, but many of the time you will see that the drinking water is a problem. An animal gets sick out of that, or there is a air pollution, there is a noise pollution. Animal don't like noise, they want to sit in calm. तो इन सारी चीजों की वजह से, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ने की वजह से भी ब्रीडेबिलिटी कम हुई है, और ये भारत को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। भारत के डेयरी फार्मर्स को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि एनिमल्स भी एक जिंदा प्राणी है, उसको प्यार से रखना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, उसको दौड़ाना नहीं चाहिए, और उससे अगर हमें मिल्क लेना है तो मिल्क के बराबर उसको खिलाना चाहिए। एनिमल के पास इतना रिजर्व नहीं है, उसके पास बैंक बैलेंस नहीं है कि वो आपको अपनी तरफ से मिल्क दे दे और खाना कम खाए। सो these are the factors which we are seeing here. We are projecting only buffalo, but the cattle situation is also not very good in our country as far as the breedability is concerned, right? Let's go to the second slide. Now we are coming to the breed multiplication scheme, and we are asking who can apply. Who can apply? So these are the persons they can apply. Is an individual person, entrepreneur, he is already into the business and he want to apply. He is into a very small dairy farm business, and now he want to make it independently a big farm, a commercial farm, a technical farm. So that person can apply. Or these are the organizations which are allowed to apply, that is SHG, self-help groups. It could be of ladies, it could be of gents, it could be of mixture of both, it could be of item wise, product wise. So all kind of these things are there. This kind of self-help groups can be
can be allowed. I mean, they can apply. FPOs, we know, food processing organizations, they can apply. FCOs, farmer cooperative organizations, we know. These such farmer cooperative organizations or group of organizations, it could be a producer company, and they can apply. They are allowed to apply, or JLGs, joint liability groups. Such type of companies can apply, or Section 8 company. We all know what Section 8 companies. They work on the no profit, no loss basis. So such companies uh, can be allowed. What they are not allowed, which are not allowed, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको इस स्कीम में अप्लाई करने से रोका गया है? वो हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकती हैं। पार्टनरशिप फर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर दो आदमी मिल करके अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। एनजीओज अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, गौशाला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग नॉट एलिजिबल हैं, और ऐसा इनके प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है, और मैं प्रोजेक्ट को ही प्रोजेक्ट कर रहा हूं, कोई नई चीज हम नहीं बता रहे हैं। ओनली हम इसको एक पैलेटेबल फॉर्म में ले आए हैं। वी वांट दैट फार्मर के को इसकी समझ आसानी से आ जाए। तो जब हम ये बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम दो आदमी मिलकर के अप्लाई कर सकते हैं, एक ही घर के? यस, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पिताजी हैं या आपके बेटे के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, दो भाई मिलके अप्लाई करना चाहते हैं, पति पत्नी मिलके अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये लोग एक ही फैमिली के अगर दो लोग मिलकर के अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, वो अलाउड है इसमें। आइए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट स्लाइड सेज। दिस इज स्क्रूटनी। अब आपने अप्लाई तो कर दिया, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बेसिकली दो भागों में बांटा जा सकता है इसको। एक तो है अपलोड डॉक्यूमेंट, ऐसे 7 फॉर्मेट हैं। ये 7 फॉर्मेट्स आपको अपलोड करना है, और वो 7 फॉर्मेट का डिटेल हम लोग इसके अगले भाग में, ये वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम लोगों ने 2 भाग में इस वीडियो को बनाया है। पहला वीडियो भाग आप देख रहे हैं, दूसरा इसका जो वीडियो भाग होगा उसमें हम लोग फॉर्मेट की चर्चा करेंगे कि जो अपलोड फॉर्मेट्स हैं, व्हाट आर दीज अपलोड फॉर्मेट्स, एंड दे हैव टू बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल ऑनलाइन। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है हमारे नॉलेज में, और भी हो सकते हैं जिसकी हमें जानकारी न हो। डेयरी में ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको किसी के पास नहीं जाना है, आपको अपने पोर्टल पे जाना है और पोर्टल पे डायरेक्टली चीजें अपलोड करनी है। चाहे वो आपके अपलोड डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो आपका डीपीआर हो, चाहे वो आपका आगे चल के जो भी चीजें फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए मांगी जाती हैं, वो सारे के सारे आपको पोर्टल के ऊपर ही अपलोड करना है। ये पहला एक ऐसा है प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपको किसी से किसी प्रकार की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो सहायता आपको लेना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि आप नेट में इतने पारंगत नहीं है, यू आर नॉट सो मच नेट सावी, then you can take the help of some of the person who can operate your portal on your behalf. So that could be one help you can take. Otherwise, all information, all question reply, they have given on this site. So better trust on the site, not on the touts. Again, I repeat, if you have any question in your mind, visit the site. Not, do not visit to the tout. Do not quote me any kind of, people come to me, sir, my friend has been telling that this can be done. Why a friend? Why not NDTV? You have a number given, NDTV has given a number where you can go anytime, you can call. Thereafter, if you are not getting a resolve, suppose आपको पोर्टल के ऊपर समझ में नहीं आया, एनडीडीबी के ऊपर, एनडीडीबी ने मान लीजिए कॉल नहीं आपका थ्रू हो पाया, आपसे बात नहीं हो पाई, या वहां पर छुट्टी है, सैटरडे संडे एनडीडीबी में छुट्टी रहता है, कृपया उन 2 दिनों में वो नंबर ट्राई ना करें, आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा। तो बाकी दिनों में आप ट्राई करें, अगर नहीं मिला उसके बाद आप किसी जेन्युइन कंसल्टेंट, डेयरी कंसल्टेंट के पास जाइए, वो उनको कॉल करिए, हम लोगों को कॉल करिए, हम लोग आपको राइट पॉइंट, एक हर चीज सत्य बताएंगे। वी विल टेल यू ट्रुथ, and we do not want any kind of
brokerage, any kind of, tout things. No, no agents. Please don't go to the agents. Please don't go to the touts. Please don't go to the brokers. Many of the brokers are working in the country, and they are telling that we will provide you the sanction letter and this that, and you pay me this much, pay me 20 lakh rupees, we'll provide you all these things, and later on they run away with your this thing, with your money. NDDB is a professional organization. NDDB will never ever allow this kind of things to happen. So please believe on NDDB site. Please believe on NDDB number. Please believe on dairy consultants, right? So here what it says, that if you have applied on the portal, so now what will happen to your application? See, it says the eligibility based on the land requirement and network of the applicant. Supported documents related to the BMF application. See, there are 7 formats. It has got land requirement, it has got net worth, it has got, nobody has blacklisted you, it has got veterinary certificate that you have been rearing the animal, and it has got other support document, your identity, your affidavit, all those things are there to be uploaded. This is called upload document. And there is a list which we will be discussing in detail in the next part of this video. Then comes the DPR. The detailed project report is prepared by a technical person, not by the non-technical person. Non-technical person will not understand that what is the technical problems in calculating the numbers. So that becomes a problem, and hence many of the questions NDDB generally raises on those DPRs which have been prepared by the non-technical people, right? So what they are telling, स्क्रीनिंग ऑफ बीएमएफ एप्लीकेशन सबमिटेड विद डीपीआर. अगर आपने डीपीआर के साथ में सबमिट किया है तो पहले लैंड डॉक्यूमेंट, नेटवर्थ, और आप कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, इन चीजों की जानकारी पहले एग्जामिन की जाएगी. अगर आपका लैंड डॉक्यूमेंट फेल कर जाता है तो आपको ये प्रोजेक्ट के लिए आपका डीपीआर भी नहीं देखा जाएगा. इसलिए लैंड डॉक्यूमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेटवर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप ब्लैक लिस्टेड किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपका ब्लैक लिस्टिंग नहीं किया गया है, आपको डिबार नहीं किया गया है, ऐसा कुछ, जैसे मान लीजिए तमाम लोग हैं, लोन लेते हैं, लोन रिपे नहीं करते हैं, उसके बाद बैंक्स उनको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, या कहीं आपने ट्रेड किया है, कोई बिजनेस किया है, व्यवसाय में आप ब्लैकलिस्टेड हैं, ऐसे ऐसे इंडिविजुअल्स को अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा. वो लोग अलाउड नहीं हैं. या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है, कोई सप्लायर हैं जो सप्लाई करते थे, उनको अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लैकलिस्ट किया है, उनको अप्लाई करने नहीं दिया जाएगा. वो अप्लाई तो कर देंगे लेकिन उनका प्रोसेस नहीं किया जाएगा. तो स्क्रूटनी प्रोसेस में इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा. इस कम टू द सेकंड पॉइंट. अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि मान लीजिए आपका सारे डॉक्यूमेंट ठीक पाए गए, डीपीआर ठीक पाया गया, डीपीआर में जो क्वेश्चन था, लैंड में जो क्वेश्चन था, या नेटवर्क में जो क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया दोबारा, आपने उसका जवाब दे दिया है. ये जवाब दे देने के बाद आपको एक लेटर आता है, जो एनडीडीबी की तरफ से लेटर आता है और बैंक के नाम आता है. इसको फॉरवर्डिंग लेटर कहा जाता है. वो फॉरवर्ड करते हैं बैंक को, आपके कुछ डेटा को लेकर के वो फॉरवर्ड करते हैं बैंक को कि हम लोगों ने इनको एग्जामिन किया है और ये जो है इनको आप लोन देने के लिए सोच सकते हैं. अब ये बैंक की जिम्मेदारी है कि बैंक आपके डॉक्यूमेंट को फिर से एग्जामिन करे, या फिर एनडीडीबी के रिकमेंडेशन को बेस लेते हुए और वो आपको लोन के लिए एग्री कर जाए. तो जब लोन के लिए वो एग्री कर जाते हैं, उसको कहते हैं सैंक्शन लेटर, बैंक सैंक्शन लेटर. ये फाइनल बैंक सैंक्शन लेटर की भी आवश्यकता पड़ेगी आगे चल के. तो स्क्रीनिंग ये बोलता है कि पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे. अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तब डीपीआर की बात की जाएगी. अगर डीपीआर भी ठीक हुआ, उसके बाद आपको लेटर फॉरवर्डिंग किया जाएगा. ये लेटर फॉरवर्डिंग जब आपके पास आएगा तो आप कृपया ये ना समझें कि
मेरा एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। नहीं, ये मीडियल, ये बीच की एक स्थिति है। यू आर नॉट येट अप्रूव्ड, it will take time. Now you are going to approach to the bank, and bank is going to give you a final sanction letter. Sometime many applications are coming to the NDDB that it is with the approved sanction letter. Suppose you are an applicant and you have a very good relation with the bank, you have been doing banking with the bank, you have loan credential with the bank want to see your DPR and other documents, and if they have already given a sanction letter, so then what it says that okay, if you submit all these things, then comes the third stage. All documents, land document, net worth, certificate, DPR, final sanction letter, ROI sheet, this all will be examined, and then it will be sent to the Department of Animal Husbandry and Dairying. तो अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर आपने किसी बैंक से जिससे आप बैंकिंग कर रहे हैं और उन्होंने आपको ऑलरेडी सैंक्शन लेटर दे दिया है आपके डीपीआर में दिखाए गए लोन के ऊपर, then this sanction letter along with your all the document will be sent by NDDB to the Government of India, Department of Animal Husbandry and Dairying, and then they will examine it. Then comes the final approval stage. How it comes? The sanction letter is mailed to the applicant. Now, the Department of Animal Husbandry and Dairying has examined all these things, the third stage part, and then they have given a sanction letter, means your project is approved. This is mailed to the applicant. At the same time, they are going to send you a grant agreement. The grant agreement is between NDDB and applicant. Mind it. No sanction letter will come to you unless there is a grant agreement signed. So this is most important. The grant agreement has to be signed between you, means the applicant, and NDDB. So this will be facilitated by NDDB to the applicant. Now come to the physical verification. Now, as opening of the bank account, saving bank account. Obviously, all transaction has to be through bank, so the bank account has to be there. Now, physical verification by NDDB. We will discuss in detail what is physical verification going to be. So mind it, those applicants, they are feeling that they will take the subsidy and run away. No, it is not possible. You will not get the subsidy. How? We will be discussing in the next slides. Now that is the physical verification we will discuss. Now अब देखिए आप proof of loan disbursement of beneficiary contribution. जो बैंक ने आपको लोन सैंक्शन किया है वो, और आपका जो हिस्सा है उसमें 10% का या 15% का या 20%, जो भी आपको दिया है, जो भी अलाउड है प्रोजेक्ट में, that will be examined that yes, have you really deposited that much money in the bank or not, whether the loan disbursement is already come to your account or not, all these things will be examined. अभी क्या होता है, रिलीज ऑफ ग्रांट सब्सिडी एज पर द गाइडलाइन. इस गाइडलाइन की हम विधिवत चर्चा करेंगे. इसमें यहां पर एक चीज बता दें कि whether the project is of 500 crore, not 400 crore. Suppose it is 500 crore. Your subsidy is going to be only 200 lakhs. That's all. If the project is not 500 crore, 500 lakhs, the subsidy is going to be only 200 lakhs, means 50% of 400 lakhs. मतलब 2 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी की उम्मीद आप कभी ना करें. आपका प्रोजेक्ट चाहे 800 करोड़ का हो तो भी आपको 200 करोड़ ही 800 लाख का हो तो भी 800 लाख का हो तो भी आपको 200 लाख ही सब्सिडी मिलनी है. और वो 200 लाख की सब्सिडी आपको 8 इंस्टॉलमेंट में मिलनी है. कैसे मिलनी है, हम आगे चलते हैं. अगले स्लाइड में लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट स्लाइड सेज. नेक्स्ट स्लाइड सेज द सब्सिडी and it is on only on the 3 capital components. It is not on all amounts. It is on capital components. And what are these capital components? We will discuss one by one. Now just see 3 parts. 200
lakh is the government of India subsidy. 40 lakh is, we have taken 10% here. 40 lakh is the individual contribution and 160 lakh is the loan. Summing up, it becomes 400 lakhs. So this is the amount government of India is going to consider. Suppose your loan goes, this loan part goes 260. Government of India is not going to increase this 200. It will be like that only. So that is the point of making here. Okay, what are the three capital components जिसकी बात कर रहे हैं? These are the three capital components: the civil construction, equipment and animal. Mind it. Please ऐसे लोग अप्लाई ना करें जिनके पास जो रोज के खर्चे होते हैं, वर्किंग कैपिटल का खर्चा होता है, जो हमारे रेकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, जो हमारे फिक्स एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको देने के लिए अगर पैसा नहीं है तो कृपया इसमें अप्लाई नहीं करिए, क्योंकि जो सब्सिडी है वो कंज्यूमेबल्स पे नहीं है। ये सब्सिडी जो आपको दी जा रही है वो कैपिटल कंपोनेंट्स पे है, और वो क्या है? कंस्ट्रक्शन, कैटल शेड, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, फीड फॉडर स्टोर, शेड फॉर एग्रीकल्चर, ये जो डिटेल हमने दिया है इसी के ऊपर आपको सब्सिडी मिलनी है। बाकी जो भी आप खर्चा कर रहे हैं जानवर को खिलाने में, मेंटेन करने में, ब्रीडिंग करने में, उनको उनको देख रेख करने में, उनके बाकी चीजों के लिए जो भी कंज्यूमेबल्स आप कर रहे हैं, लेबर पे खर्चा कर रहे हैं, ये सारे खर्चे आपको करने हैं। और वो कैसे करने हैं ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं। Let's come to the next slide. Next slide is very clearly saying that how you are going to get the subsidy. अब कैसे सब्सिडी मिलेगी? ये 8 इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि सपोज किसी का प्रोजेक्ट 425 लाख का है। 425 लाख में 200 लाख की सब्सिडी है और 12.5% अगर आप देखते हैं तो उसका कितना बनता है, ये चीजें देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए पहले हम देखते हैं कि पहला इंस्टॉलमेंट कैसे रिलीज होगा। ये आप जान लीजिए कि पहला इंस्टॉलमेंट किस तरह से रिलीज होगा। इसको 400 मानते हुए 12.5% की सब्सिडी 25 लाख की बनती है। 5 लाख आपका कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि आपके पास आपका कंट्रीब्यूशन 40 लाख माना गया है, और ये बैंक लोन है जो कि 160 लाख माना गया है, उसमें से 20 लाख बैंक का कंट्रीब्यूशन, टोटल 50 लाख का पहला रिलीज होना है। अब ये पहला रिलीज 50 लाख इन तीनों चीजों को मिला के होना है, जिसमें सब्सिडी केवल 25 लाख है। अब ये क्या कह रहे हैं कि रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ग्रांट एग्रीमेंट, अगर आपने ग्रांट एग्रीमेंट नहीं दिया है तो आपको सैंक्शन लेटर नहीं मिलेगा, और सैंक्शन लेटर नहीं मिलेगा तो आप सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए ग्रांट एग्रीमेंट को भेजना है, सैंक्शन लेटर को रिसीव करना है, और उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का क्लेम करना है। अब देखिए, मॉनिटरिंग ऑफ द फर्स्ट फिजिकल वेरिफिकेशन, ये फिजिकल वेरिफिकेशन को हम शार्ट में बात करेंगे, हम पीवी करेंगे इसको। ये फिजिकल, व्हाट इज दिस फिजिकल वेरिफिकेशन? Either NDDB or government of state government, somebody will come and examine whatever you have done at the ground. आपने जो काम किया है, जो वहां इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल कंपोनेंट्स में, उसकी जांच करने के बाद वो लोग जाकर के रिपोर्ट करेंगे। इस मॉनिटरिंग रिपोर्ट के बाद ही आपको पहला सब्सिडी का इंस्टॉलमेंट मिलेगा। प्रूफ ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ बैंक एंड बेनिफिशरीज कंट्रीब्यूशन, अब ये कह रहे हैं प्रूफ इसलिए हमने हाईलाइट किया है कि वो दिखना चाहिए आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, कि आपका पैसा 12.5% आ गया है, बैंक का 12.5% आ गया है, और तब सब्सिडी का 12.5% उसमें आएगा। सब्सिडी का 12.5% 400 का कितना होगा? 25 लाख, और आप दोनों का मिला करके आपका अपना कंट्रीब्यूशन और बैंक का मिला करके 25 लाख होगा। तो आपका 50 लाख का क्रेडिट वहां पे दिखाएगा। ये सब्सिडी 25 लाख की आपकी तब रिलीज की जाएगी। आइए सेकंड इंस्टॉलमेंट कब रिलीज होगा? ये वही बात है, सेम चीज है, 12.5% रहेगा और 25 लाख ही रहेगा, 50 लाख का ही ये भी रहेगा। ये भी वही सबमिशन ऑफ, अब यहाँ पर फंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट एक नई चीज आ रही है।
फंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट क्या है कि आपको जो हमने ये पैसा दिया था यहाँ पे पहले वाले में, उसका आपने कैसे उपयोग किया है और उसको आप ऑडिट कराए हैं कि नहीं। ये ऑडिटेड फंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट है, इसको हम एफयूसी कहेंगे। ये एफयूसी जो है ऑडिटेड होना है। और प्रूफ ऑफ बैंक, फिर वो जो लास्ट पार्ट था, प्रूफ ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ 12.5%, आपके अकाउंट में आपका हिस्सा और बैंक की तरफ से लोन का हिस्सा आपके अकाउंट में होना चाहिए, और प्लस ये डेटा होना चाहिए जिसको इसका फॉर्मेट एनडीडीबी आपको देगा और उस पे एफयूसी आपको बनाना पड़ेगा, और ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी। ये कहीं ऑफिस में जाके जमा नहीं करना है, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। तब जाकर के आपका, अब क्या वो देखेंगे कि आपकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट ठीक रही है, आपका सबमिशन ऑफ फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपका अच्छा रहा है, और आपके खाते में 25% जो है कंट्रीब्यूशन वो आ चुका है। 25% क्यों कह रहे हैं, 12.5% पहला था और 12.5% दूसरा जब जोड़ते हैं तो ये 25% बन जाता है। ठीक है, let's go to the next slide. Next slide, again the same thing, and it is talking about the third installment. Same thing, same amount, but see, the things are changing. Monitoring report, now whatever the physical verification was done earlier in the second one, in the first one, let's go to the first slide. Let's go to the first slide. Yeah, when we talk about the physical verification here in the first installment, this will become a monitoring report for the next slide, next installment, third installment. Now third installment is coming like this, again monitoring report, whether this second PV, this is the second PV, this time NDDB or state government again will come in the third. First was it was done, second it was not done, third it is being done, and confirming the civil work for 200 animal, whether the civil work has been done for 200 animal or 50 animal if they are from the arid zone or northeast zone, so their animal size is only 50, so the subsidy is also only 50 lakh. So they are talking about that, they are talking whether 200 animal shed has been completed or not. Then comes the proof of disbursement by bank, the same thing. Now already it was 25% in the second installment. Here it is saying the third installment 37.5%. So this is how it goes. The submission of FUC. What is this FUC? You got the money of 25% in the second installment. Till second installment you have received up to 25%. For that the fund utilization certificate you have to submit. If you have submitted audited, then you are going to get this third installment. Right? Now come to the fourth installment. Same thing, again proof of bank disbursement, again the fund utilization certificate, and no PV here. So PV was, this the physical verification was in first, physical verification was in third, second was missing, and fourth was missing, right? Then NDDB is monitoring your project through the geotag. Mind it. Don't think that nobody has come, your project is not being seen. It is being monitored online from the geotag. So be careful. Whatever you say, it should be on the ground. Now come to the next slide. Next slide, again it is talking about the fifth installment. Again the same amount, 50 lakh amount, and this 50 lakh again the third PV, third physical verification is being done, and then proof of this thing that this much money has been credited in your account by this date, and now this is the fund utilization certificate. Same thing you will get in the sixth also, same thing you will repeat in the seventh also and eighth also. So there is no much of change, but there are some ticklish issues that we would like to discuss here. Now by this time you will be having 82.5% of the of the project cost already credited in your account, right? So this project cost is already credited in your account. Now what they are talking here, see,
Seventh also there is a physical verification, fourth physical verification, and they will refer in eighth also the fourth physical verification. And now come to the, they want to see whether targeted number of heifers for sale as per the DPR are available or not. That's what they are going to see. Then comes proof of disbursement of bank 100% is already into your account. This is the eighth one. So they are talking that whether in the seventh one, they are talking whether 10% calf has been taken birth or not, right? The remaining 50% animals have been brought or not. Suppose 200 animal, up to 60 you have to bring 100 animals. Seventh you have to bring remaining 50% animal, means 200 animals. Total 200 animals. So out of this, whether this birth of 10% calf has taken place or not. So these are the riders they have put. Suppose anything is missing, 50% animals have not been added now to make it 100%. आपको 7 सब्सिडी नहीं मिलेगी, आपको रोक दिया जाएगा यहाँ पे। आपके 10% काफ का जन्म नहीं हुआ है, आपकी 7 सब्सिडी, 7th वाला जो आ रहा है, जो 82.5% आपको मिल जाता, वो यहाँ पे रुक जाएगा। अब इसी तरह से 8वें में जब आप जाएंगे तो वहां पर भी फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू आया है, ये फोर्थ की ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसको देखते हुए नंबर ऑफ हीफर जो डीपीआर में आपने कहा था कि हम इतना सेल करेंगे हर साल, क्या वो आपके पास है कि नहीं फार्म पे, ये वेरिफिकेशन करने के बाद और 100% कंट्रीब्यूशन आपको दे दिया जाएगा, जिसका फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है आप सबमिट करेंगे लेटर। तो इस तरह से आपको 8 भाग में सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अब आइए हम कैसे ट्रैक करेंगे इन चीजों को, किस तरह से रखे, हमको कैसे पता चला कितना कब मिला कितना, ठीक है आपके बैंक अकाउंट में है, लेकिन ये पैसा किस चीज का मिला ये आपको कैसे पता चलेगा। तो ये फॉर्मेट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें एनिमल परचेज, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट, इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर सब्सिडी है। तो इन्हीं तीनों चीजों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना हिस्सा आया, बैंक का कितना हिस्सा आया, आपका कितना आया और टोटल प्रोजेक्ट क्या हुआ, और इनके सारे बिल्स आपको एक साथ रखने पड़ेंगे ताकि आपको कभी भी एग्जामिन करने के लिए बुलाया जाए, देखा जाए, पूछा जाए तो आप निकाल के दें, साहब हमने 6th वाले में हमने ये किया था और ये हमको मिला है, 7th हमको चाहिए। सो लाइक दैट you have to be ready with the record, proper record keeping. Now come to the capital subsidy funding को हम कैसे दिखाएंगे। इसमें टर्म्स बहुत सारे यूज किए जाते हैं। अब आप इसको देखिए, टर्म बहुत सारे यूज किए जाते हैं। कौन से टर्म है? अब फिजिकल वेरिफिकेशन, सब लोग बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन है क्या भाई? फिजिकल वेरिफिकेशन जो ये है, या तो एनडीडीबी का बंदा आएगा या स्टेट गवर्नमेंट का बंदा आएगा, वो आके एनडीडीबी के द्वारा वो अपॉइंटेड रहेंगे, वो आके आपके फॉर्म को चेक करेंगे और उनके पास ऑलरेडी चेक पैरामीटर हैं। उन चेक पैरामीटर के ऊपर वो टिक लगाएंगे और अपने कमेंट देंगे। ये कमेंट के बेसिस पर आपकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट बनेगी, जिस मॉनिटरिंग रिपोर्ट के ऊपर आपकी अगली सब्सिडी रिलीज होगी। तो आपके 4 फिजिकल वेरिफिकेशन होने हैं, तो 4 मॉनिटरिंग रिपोर्ट बनेगी। ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी चीज मत कहिएगा जो आपके पास फार्म पे नहीं है, ये गलत हो जाएगा और आपकी सब्सिडी आगे रुक जाएगी। अब प्रूफ की बात कर, प्रूफ ये है कि आपके बैंक अकाउंट में ये सब चीजें होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपको मिल सकता है, बिल्स जो आप जो क्लेम कर रहे हैं तीनों चीजों के लिए, बेसिकली कैपिटल सब्सिडी की बात हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो ये आप बिल्स ले रहे हैं, ये बिल ऐसे चलते फिरते बिल नहीं होने चाहिए कि भाई एक कागज फाड़ के उसके ऊपर लिख दिया पेन से आपका बिल तैयार हो गया, ये सब नहीं चलेगा। प्रॉपर बिल होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, किस कंपनी से आपने लिया है वो सारी चीजें होनी चाहिए, तभी आपको ये सब्सिडी में इंक्लूड होगा। अदरवाइज आपकी सब्सिडी 200 भी नहीं मिलेगी, उससे भी कम मिलेगी। अगर आप नहीं पेपर सही नहीं देंगे
तो आपकी सब्सिडी भी सही नहीं आएगी। ये सीधी सी बात है। तो इसलिए प्रूफ की बात करता है। सबमिशन की बात, सबमिशन मतलब केवल ऑन पोर्टल, ये किसी के जेब में सबमिट नहीं करना है, किसी के ऑफिस में सबमिट नहीं करना, पोर्टल पे सबमिट करना। जो मॉनिटरिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई बंदा आता है, वो भी पोर्टल पे सबमिट करेगा। आपको भी दिखेगा उन्होंने क्या किया है, और आपको एनडीडीबी को भी दिखेगा उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दिखेगा उन्होंने क्या किया है। ठीक है। अब ये पर्सन सैंक्शन लोन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डीपीआर में हम ये मान के चलते हैं हमेशा कि 200 की तो हमें सब्सिडी मिल जाएगी, 200 लाख की, और 200 सवा 200 लाख की जो हमारा प्रोजेक्ट का बाकी वाला हिस्सा है वो हम इसमें जोड़ देते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट का सैंक्शन लोन, सैंक्शन अमाउंट बनता है। करेक्ट। आपका प्रोजेक्ट 425 लाख का है, उसमें से 200 लाख की सब्सिडी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देने के लिए बाध्य है, वो देगी। लेकिन इन चीजों को पूरा करने के बाद अब क्या जो बचता है 225 लाख, उसका क्या होगा? अब ये 225 लाख दो भागों में बटेगा, एक आपका हिस्सा रहेगा, एक बैंक लोन का हिस्सा रहेगा। तो ऐसे करेंगे तो 185 लाख बैंक से आएगा, और उसके बाद आपका यहां से 100 190 लाख करीब बैंक से आएगा, और 40 लाख आपकी तरफ से आ रहा है। तो ये दोनों चीजों मिल करके 225 लाख के लगभग जो आपका बनेगा, वो ये वो हिस्सा बनेगा जो कि लोन का कहा जाता है। अब प्रोजेक्ट में लोन सैंक्शन क्या कहलाता है? 12.5% 50 लाख कैसे होता है? 12.5% अगर 50 लाख हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने 400 लाख की बात की है। ठीक है ना? अगर 400 लाख की बात किया, इसका मतलब सब्सिडी भी लोन के अंदर है, ये आपको समझना है यहां पर। तो जो सैंक्शन लोन अमाउंट बोलता है, यदि आपका प्रोजेक्ट 425 लाख का है तो आपका टोटल लोन 425 लाख का बनेगा। ये जरूर है कि उसमें से 200 लाख का जो है वो एनडीडीबी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर करेगा, उसका इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक को देगा, वो अलग से ट्रीट किया जाएगा, वो ठीक है। लेकिन आपकी लायबिलिटी, लोन लायबिलिटी 425 लाख की होगी। तो जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाएं तो आप ध्यान रखें, कुछ लोग बोलते हैं हमने 450 लाख का बना दिया है, हमने 500 लाख का बना दिया, लोगों ने 800 लाख का बना दिया है। भाई वो तो आपके घर से जा रहा है पैसा, आप जितना चाहे लोन ले लो, उसमें क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू गिव यू ओनली 200 lakhs, दैट्स ऑल, फिनिश। सो उसकी जिम्मेदारी केवल 200 lakhs की है, और उसके इंटरेस्ट की भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जो बैंक को प्राप्त हो जाएगा, जिसे आपको नहीं देना है। तो जब परसेंट ऑफ सैंक्शन लोन की बात कर रहा है तो पूरे अमाउंट की बात कर रहा है, 425 लाख की बात कर रहा है। और इसीलिए जब 400 लाख की वो बात करेगा तभी आपका 50 लाख हर एक इंस्टॉलमेंट में बनेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे जाइए, एफयूसी, फंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट क्या होता है? एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है जिसके लिए एक फॉर्मेट एनडीडीबी आपको देगा, और वो फॉर्मेट आपको उसी हिसाब से भरना पड़ेगा जिस हिसाब से उसमें कहा गया है। जैसे सारे लोग जो व्यवसाय करते हैं वो आजकल जीएसटी देते हैं, उसके लिए जो फॉर्म भरते हैं और अप्लाई करते हैं, हर हर महीने उनको जमा करना पड़ता है। इसी तरीके से आपको हर इस क्वार्टर पर आप अप्लाई कर रहे हैं, और ये आपको एफयूआर देना पड़ेगा, एफयूसी, फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये खर्चा हमने किया है। अब आप आइए लास्ट वाला, टारगेटेड नंबर ऑफ हीफर्स बताया। अगर ये बेफ्लो है तो वहां पर एक नंबर दिया हुआ है कि इतना ही नंबर आपको बेचना पड़ेगा। अगर ये काऊ है तो इतना नंबर आपको बेचना पड़ेगा, ये आपके प्रोजेक्ट में दिया हुआ है जो डीपीआर में लिखा जाता है। अब डीपीआर को लेकर के वो कहेगा कि भाई आपके पास इतने हीफर हैं कि नहीं है, तो उसको कहते हैं कि टारगेटेड नंबर ऑफ हीफर्स। किसी के डीपीआर में कुछ नंबर होगा, किसी के डीपीआर में कुछ नंबर होगा। तो ये ध्यान रहे कि उतना आपके ग्राउंड पर एनिमल तैयार है बिकने के लिए। अब 10% काफ बॉन्ड की बात कर रहा है, काफ बॉन्ड भी आप डीपीआर में दिखा रहे हैं, और उसी के हिसाब से 10% आपको उस समय काफ बॉन्ड होना चाहिए, तभी जाकर के आपको सातवां वाला जो
इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज होगा। नेटवर्थ, ये बहुत ही विडंबना है कि नेटवर्थ तो एनडीडीबी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 200 एनिमल के लिए मांगा है, सिर्फ कितने का मांगा है उन्होंने, कितने का मांगा, 2 CR का मांगा है, केवल 2 CR का मांगा है। हम कितने का देते हैं, 4 CR, 6 CR, 8 CR। साहब हम धनी आदमी हैं, हमारे पास बहुत है साहब, ले लीजिए साहब, कोई जरूरत नहीं है। जितना उन्होंने मांगा है आप उतने का दे दीजिए, तो भी आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसी तरह से देखा जाएगा। अगर 10 CR का बना के देंगे तो भी उसी तरह देखा जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो रिक्वायरमेंट है वही पूरा कर दें, उतना ही बहुत बड़ी बात है। अब इसमें क्या क्या आता है, आपका हाउस आता है, लैंड आता है, ज्वेलरी आती है, बैंक बैलेंस। अब ये नहीं लैंड आएगा कि आप अपना नेटवर्क दिखा रहे हैं और लैंड दिखा रहे हैं पिताजी का। होता है, खूब होता है, और इसलिए वापस भी आता है। लैंड पिताजी के नाम में है, आप दिखा दे रहे हैं। कल को जब स्क्रूटनी हुआ, पता किया जो लैंड कहाँ है भाई, ये वाला, बोले हमारे नाम नहीं, पिताजी के नाम से। भाई वो तो उनका नेटवर्थ हुआ, पिताजी इसमें एप्लीकेशन एप्लीकेंट तो है नहीं। अगर पिताजी एप्लीकेंट है तो दोनों का मिलाकर के नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखा जाए कि जो प्रोजेक्ट कहता है हमें वही करना चाहिए। सीए से बताने से या अन्य लोगों के बताने से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। ज्ञान केवल प्रोजेक्ट से लीजिए, साइट से लीजिए, एनडीडीबी से लीजिए, या डेयरी कंसल्टेंट जो वास्तव में सत्यता पे काम कर रहे हैं उन लोगों से लीजिए। अब आप आइए, नीचे लास्ट में लिख रहा है ब्लैक लिस्टेड, इसकी चर्चा हो चुकी है, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम लास्ट स्लाइड में जाते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जो भी समझ में नहीं आया हो इन फिगर में, वो हमें आप ईमेल करें, हमारा यूट्यूब हैंडल देखें, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये देखिए हमारा ईमेल आईडी अभी आ गया आपके सामने। इस ईमेल आईडी के ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कृपया फोन न करें। फोन करने से ना तो आपकी बात मुझे याद रहती है, ना हमने आपको कहा वो आपको याद रहेगा। बेहतर रहेगा अगर आप ईमेल करते हैं तो ईमेल के ऊपर जो रिप्लाई हुआ वो आपने क्या पूछा वो हमारे पास है, हमने क्या जवाब दिया वो आपके पास है। कृपया ईमेल का इस्तेमाल करें। खास तौर से टाउट लोग ऐसी चीजें नहीं करते हैं, खास तौर से वो लोग ऐसे काम नहीं करते हैं। वो लोग जनरली फोन पर ही चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है उसका कुछ भी। मत भूलिए, रिकॉर्ड उसका भी हो सकता है, हम लोग सेव कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट बेटर है कि आप ईमेल भेजिए। ईमेल में रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, ये हम लोगों का वादा है। और ये हम लोग चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपको अच्छा लगता है, हमें खुशी होगी कि आपको इन चीज़ों को बताने से आपको यदि कुछ लाभ मिलता है। यदि आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है, आप भले ही हमसे डीपीआर नहीं बनवाए हैं, हमसे अपलोड डॉक्यूमेंट नहीं करवाए हैं, कोई बात नहीं, आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है, यही हमारे लिए खुशी है। हमको एक लाइन भेज दीजिए कि हमको प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है। थैंक यू वेरी मच। प्रोजेक्ट सैंक्शन होने के बाद भी ढेर सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट होते हैं, सर ऐसे इसको कैसे करें, इसको कैसे करें। तो हम लोग वेटनेरियन होने के नाते आपको वहां भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो कृपया इन चीजों का ध्यान रखते हुए आगे आप काम करें। वेरी मच गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आप हमारा वीडियो देखें और औरों को भी बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।